Good morning class. Today we are going to do another lesson, the bond of love. This chapter is about a wild bear. Okay? Means Bhalu, whose name was Bruno. One day the author was going from the Masuri field when he found that some villagers are running and they are hunting a wild animal. Okay? And in that hunting, when they were hunting pigs, so accidentally they have also shot down a bear, and that bear mother was dead in front of us, and there was a small baby which was crawling over the bear mother. So the author felt very pretty and he took the bear in its arm and he has taken the bear to his home, and they were taking the author and author's wife, they were taking the best care of this Bruno. They were first giving this baby liquid diet because the baby was really very small. They have taken the bear to the doctor also to give proper vaccination and other medicines. Okay children, and as time passes, the bear started growing up. In just 1 or 2 months, the bear was this much, and in 1 or 2 months, the bear grown to be a big bear. Okay, in just 2 months, and he started eating everything, that is from carrot to flesh, milk, and all the other things that was cooked in the house, from rice to chapatis to vegetables to everything. Okay, and he was completely adjusted with the family, and the children in the neighbor were also very fond of Bruno. They also used to come and spend their time. जो ब्रूनो जो बियर था, जो इन लोग को ऑथर को मिला था, ऑथर एक मसूरी के खेत में से पास होता है, तब वो वहां देखता है कि कुछ लोग गन शूट कर रहे हैं और वो लोग कुछ एनिमल्स को मार रहे हैं, जंगली पिग्स को मार रहे हैं। और इस एक्सीडेंट में क्या होता है, वो लोग से गलती से एक बियर मदर की भी डेथ हो जाती है, और वो बियर मदर जब नीचे गिरती है तो उसके ऊपर उसका छोटा सा बेबी आके क्रॉल करके बैठ जाता है। ठीक है, और ऑथर को उस बेबी पे बहुत दया आती है, तो ऑथर उस बेबी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। ये जो छोटा सा बियर बेबी रहता है, ये ऑथर के घर में जाता है, तो वो बहुत छोटा सा रहता है। उसको वो लोग लिक्विड डाइट देते हैं, मिल्क, जूस, कॉफी, टी, और वो बहुत मन से ये सारी चीजें खाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो 1-2 महीने में ही बहुत बड़ा सा बियर हो गया था, और वो फिर कैरेट, फ्लश, मिल्क, मीट सारी चीजें खाने लग गया। ठीक है, और उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया फैमिली में, और वो कॉलोनी में भी जो बच्चे थे उनके साथ भी वो बहुत अच्छे से खेलता था। एंड ही यूज्ड टू बिहेव लाइक अ परफेक्ट पेट। वो एक बियर जैसे बिहेव नहीं करता था, उसमें बिल्कुल बैलेंस नहीं था, वो बहुत ही स्वीट और चार्मिंग सा बियर था। ओके, एक दिन ऑथर ने अपने लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा रैट होने के कारण he has put bromine to kill the rat, and accidentally he has also eaten that medicine, and because of which he was not able to walk properly. He has grown up little bit like this much in just 4 to 5 months, and this bear was able to eat everything. So he has also eaten that bromine capsule, thinking that it's a sweet or something like that. तो जब ऑथर की वाइफ ने देखा कि ये बियर बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसली मेरे पास आया है, तो तुरंत इसने अपने हस्बैंड को कॉल किया, एंड ही इन्फॉर्म्ड दैट द बियर इज नॉट फीलिंग वेल। द ऑथर रश्ड back to home, and on the way he has called the veterinary doctor also that the bear has eaten some poison, so please prepare the medical kit in hands. And very soon he reached home and he has taken the bear to the hospital, and after giving the medicine injection, in just 1 injection, the bear was feeling little conscious. जो bear था, इसने वो चूहे मारने की दवाई खा ली थी, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा वीक और अनकॉन्शियस फील हो रहा था। जो बियर था वो तुरंत अपनी जो ऑथर की जो वाइफ थी, जो घर में थी, उनके पास जाता है, और ऑथर की वाइफ समझ जाती है कि इसने कुछ पॉइजनस खाया है लाइब्रेरी से, जिसके कारण उसकी ये हालत है। ऑथर की वाइफ ऑथर को कॉल करती है कि जल्दी से घर आओ, ही हैज ईटन पॉइजन। जो ऑथर रहता है वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करता है कि मेरे घर में जो बियर है
उसने पॉइजन खा लिया है, तो जब तक हम उसको वहां पे लेकर आते हैं हॉस्पिटल में, आप प्लीज मेडिकल किट तैयार रखना। दिस वॉज वन ऑफ द सैड इंसिडेंट्स, जिसकी वजह से ऑथर हैज वेल एज उसकी वाइफ दोनों जन बहुत ज्यादा वरिड थे। और जो उस अपार्टमेंट में जितने भी लोग रहते थे, वो लोग जहाँ रहते थे उसमें जितने भी लोग रहते थे, जितने भी बच्चे रहते थे, वो लोग भी बहुत ज्यादा वरिड हो गए थे, क्योंकि एवरीबडी यूज्ड टू लव ब्रूनो अ लॉट, ओके, एंड दे वर रियली वेरी वरिड कि ब्रूनो को कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ब्रूनो जो है वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता गया। वो शाम को बाहर जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, मगर वो कभी किसी को हर्ट नहीं करता था। जो ब्रूनो था वो कभी किसी को हर्ट नहीं करता था किसी भी रीजन से। वो हमेशा बहुत अच्छे से दूसरों के साथ खेलता था, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलता था। ही वॉज ऑल्सो वेरी अटैच टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन ऑफ द कॉलोनी, ओके। सो लाइक दिस वे ब्रूनो यूज टू स्पेंड द टाइम। मगर विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, जो ब्रूनो है वो फुल फ्लेजेड बिग बियर बन गया, बहुत ही बड़ा बियर बन गया। अब उसके लिए लोग बोलने लगे कि अब इसको घर में रखना इट्स नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट कीप अ बिग वाइल्ड एनिमल इन द हाउस, so we need to put this animal in the zoo or we need to put this animal in some sanctuary। हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते हैं, हमें इसे सेंचुरी में भेजना होगा। तो the author and his wife were very worried because they thought that now we cannot do this thing with the bear, क्योंकि वो हमारे साथ इतना ज्यादा घुल मिल गया है, अब हम उसको कहीं और भेजेंगे रहने के लिए तो it will become very difficult for him। मगर फिर भी like by law they have to send the bear to some sanctuary or to some zoo। जो ऑथर एंड उसकी फैमिली है उन लोग ने बहुत सारे सेंचुरीज एंड बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ हाउस में पता करा, जू में पता करा कि हम बियर को कहाँ भेज सकते हैं। फिर उसके बाद बियर का दे हैव टेकन द मेजरमेंट ऑफ द बियर, क्योंकि बियर वॉज वेरी टॉल तो उसका मेजरमेंट लिया गया। एंड देन अ परफेक्ट केज वॉज फर्स्ट मेड, क्योंकि बियर को उस घर से लेके सेंचुरी तक ले जाने के लिए एक परफेक्ट केज बनाया गया, ठीक है। एंड द बियर गॉट दिस इल्यूजन कि उसको इस फैमिली से दूर कर रहे हैं। ही वॉज इन दिस इल्यूजन कि उसको इस फैमिली से दूर कर रहे हैं। तो बियर ने क्या किया, बियर ने बहुत ज्यादा अपसेट हो गया था वो। एंड जो ऑथर की वाइफ थी शी स्टार्टेड क्राइम, और कॉलोनी के सारे बच्चे भी रोने लग गए। एक दिन मॉर्निंग में बियर के लिए गाड़ी आई, ठीक है, और उसको ले जा रहे थे, तब बियर भी रोने लग गया, ऑथर भी रोने लग गया, उसकी वाइफ भी रोने लग गई। एंड there was a very emotional scene around in the campus, but it was their what we say, it was their like problem that they cannot keep a wild animal in their house. It is not permitted in the law. A wild animal place is in zoo, sanctuary or in forest, so they have to also send Bruno to some sanctuary, okay. And after when Bruno went from the house was completely silent, and when the Bruno was there inside the house, means Bruno was very free in the whole apartment, the Bruno was very free in the house। to stop the moving of Bruno they used to keep Bruno chain, वो लोग Bruno को चेन से बांध के रखते थे, ठीक है। जब ब्रूनो चला गया तो उनके घर में बहुत ज्यादा शांति हो गई, बहुत ज्यादा लोग उदास हो गए, बहुत ज्यादा रोने लगे। थोड़े दिन के बाद वो लोग गए ब्रूनो से मिलने, तो उन लोग को लगा था कि ब्रूनो इतने दिन में हमको भूल जाएगा। बट टू ऑथर सरप्राइज, ऑथर और उसकी वाइफ को देख के ब्रूनो बहुत ज्यादा खुश हुआ। ऑथर की वाइफ उसके लिए सारी मनपसंद की चीजें बना के ले गई, जो जो उसको पसंद था, टी, कॉफी, मिल्क, ये सारी चीजें ले गई। खाने की भी बहुत सारी चीजें बना के ले गई उसके लिए। और ब्रूनो ने दोनों जन को बहुत जोर से हक किया, बहुत जोर से गले लगाया। इससे ये समझ में आता है कि जो एनिमल है दे आर ऑल्सो हैविंग अ हाई सेंस एंड अ हाई बॉन्ड ऑफ लव अमंग देम। जो लोग उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, एनिमल्स भी उनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो सब लोग बोल रहे थे कि इतने दिन हो गए हैं, हम ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद जा रहे हैं, क्योंकि उन लोग को 1 मंथ के पहले जाने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो लोग 1 मंथ के बाद गए तो सब लोग ने बोला कि इट्स अ वाइल्ड एनिमल। जो बियर है वो जंगली जानवर होते हैं, और जंगली जानवर कभी किसी को याद नहीं रखते बहुत ज्यादा समय तक। मगर ब्रूनो ने इन सारी बातों को एकदम गलत प्रूफ किया था। ब्रूनो ने जिस तरीके से मिला उसने ही स्टार्टेड क्राइम, और फिर उसके बाद दे वर लुकिंग लाइक अ कंप्लीट हैप्पी फैमिली।
वहां के जितने भी लोग थे, जितने भी टूरिस्ट थे, जो लोग भी आए थे वहां पे जू में विजिट करने, दे वर वेरी अमेज्ड कि ये इतना बड़ा सा जो भालू है, जंगली भालू है, ये इंसानों से कितने प्रेम के साथ मिल रहा है। तो चिल्ड्रन, द नेम ऑफ द लेसन इज जस्टिफाइड द बॉन्ड ऑफ लव। मीन्स अगर आप किसी इंसान या किसी जानवर से भी बहुत अच्छे से प्यार से पेश आते हो तो वो जानवर भी आपको इन रिटर्न में लव ही वापस करेगा। दैट्स ऑल इन दिस लेसन क्लास।